امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب سے ہم نے ویب سیریز شروع کی ہے تقریباً ہر ہی ایپیسوڈ میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں آپ کب آئیں گے، آپ کا ظہور کیسے ہوگا، ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں۔ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی، آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے۔ جی ہاں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسے کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ خلافت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے، یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کی مصداق ہوگی۔ ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہو، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک کے شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملے جو یا تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔
उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेहदी हक है, यानी उनका ज़ुहूर बरहक है और ये होकर रहेगा। और मजीद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमाम मेहदी सैयदा फातिमातु ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से हो। सुभान अल्लाह। इस हदीस से इतनी बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई, क्लियर हो गई कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर यकीनी तौर पर होगा और वो एक शख्सियत है जो हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होंगी। बहुत ही अहम बात यह है कि मेहदी आपका नाम नहीं है बल्कि आपका लकब है। एक और हदीस सुनाता हूं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक खत्म ना होगी यहां तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। नाजरीन, नाम तो आपको पता चल गया, अब हम आपको उनका हुलिया बताते हैं। इमाम मेहदी दिखेंगे कैसे? सुभान अल्लाह। अहदीस में इसकी भी डिटेल मौजूद है। इनकी कुछ और सिफतें बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, इनकी नाक पतली और बुलंद होगी और पेशानी रोशन और नूरानी होगी, उनका रंग जो है वो अरबियों जैसा होगा। सुभान अल्लाह। इनके दाएं रुखसार पर तिल होगा और आपकी सीरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी होगी। आपकी तबीयत में जुहद व सखावत, रहमो करम बे इंतहा होगा। इमाम मेहदी रदियल्लाहु तआला को औलिया किराम तो पहचान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां भी मुख्तलिफ रिवायतों में बयान की गई जिसके जरिए इमाम मेहदी रदियल्लाहु तआला को पहचाना जा सकेगा। नंबर 1, इमाम मेहदी रदियल्लाहु तआला के सर पर बादल होंगे जिसमें से निदा देने वाला कहेगा कि मेहदी अल्लाह पाक के खलीफा हैं, इनकी इत्तिबा करो, इन्हें फॉलो करो। नंबर 2, इमाम मेहदी रदियल्लाहु तआला के दौर में खुश्क लकड़ी, ड्राई वुड, बिल्कुल ड्राई लैंड के अंदर खुश्क जमीन में गाड़ी जाएगी तो उसमें वो सब्ज टहनी पत्तों समेत निकलने लगेगी। सुभान अल्लाह। नंबर 3, इमाम मेहदी रदियल्लाहु तआला अन्हु से कोई किसी निशानी का सवाल करेगा तो ये हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरफ इशारा करेंगे और वो परिंदा आकर उनके हाथ पर बैठेगा। नंबर 4, बड़ी इसराइल की तरह आपके लिए दरिया फट जाएगा और उनकी तशरीफ आवरी से वो जमीन अदल से भर जाएगी जिस तरह वो पहले जुल्म से भरी हुई। हर तरफ अदल व इंसाफ होगा। इनकी आमद से पहले हर तरफ जुल्म व सितम होगा। और हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ी आजमाइश का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत को पेश आने वाली एक बहुत बड़ी ट्रबल के बारे में बताया और फरमाया कि एक जमाने में इतना शदीद जुल्म होगा कि कहीं पनाह की जगह ना मिलेगी। उस वक्त अल्लाह ताला मेरी औलाद में एक शख्स को पैदा फरमाएगा जो जमीन को अदल व इंसाफ से भर दे, वैसे ही भर देगा जैसा वो पहले जुल्म व सितम से भर चुकी थी। जमीन और आसमान के रहने वाले सब उनसे राजी होंगे। आसमान अपनी तमाम बारिश मूसलाधार बरसाएगा और जमीन अपनी सब पैदावार निकाल कर रख देगी। सुभान अल्लाह। यहां तक कि जिंदा लोगों को तमन्ना होगी कि उनसे पहले जो लोग तंगी और जुल्म की हालत में इस दुनिया से चले गए काश वो भी इन हालात को देख लेते। एवरीबडी बिकम हैप्पी, हर तरफ खुशहाली का दौर होगा, जमीन अपने खजाने निकाल रही होगी, अदल व इंसाफ होगा। नाज़रीन, ये कैसे हालात हो जब हर तरफ अमन व अमान होगा, जुल्म व सितम का खात्मा हो चुका होगा। इसकी बड़ी खूबसूरत मंजरकशी एक हदीस में मजीद बयान की गई। चनाचे हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें मेहदी के आने की खुशखबरी देता हूं जो मेरी उम्मत में इख्तिलाफ व इस्तिराब के जमाने में बड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा। उसमें मेरे आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं भेजे जाएंगे तो वो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह उनसे पहले जुल्म व सितम से भरी होगी। जमीन और आसमान वाले सब के सब उनसे खुश होंगे, वो लोगों को माल यकसा तौर पर देंगे। अल्लाह ताला उनके दौरे खिलाफत में मेरी उम्मत के दिलों में इस्तगना व बेनियाजी, अल्लाह अकबर, यानी हर कोई सेटिस्फाई होगा, उसको किसी चीज की जरूरत ही गोया नहीं होगी और इंसाफ आम होगा। वो अपने मुनादी को हुक्म देंगे कि ऐलान कर दे कि जिसे माल की हाजत हो वो मेहदी के पास आ जाए। इस ऐलान पर पूरे मुसलमानों में से सिर्फ एक शख्स आएगा, यानी इतने लोग वेल ऑफ होंगे उनको जरूरत ही नहीं होगी माल की। मेहदी रदियल्लाहु तआला उनसे फरमाएंगे कि जाओ जो ट्रेजरर है, खाजिन है, उसके पास जाकर उनसे कहो कि इमाम मेहदी ने मुझे माल देने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। ये शख्स उनके पास पहुंचेगा तो जो ट्रेजरर जिसको खजांची होगा वो कहेगा जितनी जरूरत ले जाओ, जितनी हस्बे ख्वाहिश तुम्हें हाजतें ले जाओ। तो वो अपनी हस्बे ख्वाहिश अपने दामन को माल से भर लेगा और खजाने से बाहर लाएगा। तो फिर उसे अपने अमल पर भी नदामत होगी कि अपने दिल में कहेगा कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बढ़कर लालची और हरीस मैं ही हूं। मेरे लिए वो चीज काफी नहीं जो दूसरों के वास्ते काफी और वाफी थी। सुभान अल्लाह। इस शर्मिंदगी में वो माल वापस करना चाहेगा मगर उससे ये माल कबूल नहीं किया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि हम देने के बाद वापस नहीं लेते। नाज़रीन, इस पूरी रिवायत से सीखने को क्या मिला? जब हर तरफ अदल व इंसाफ हो, दीन की असल पिक्चर अगर जमीन पर नाफिज कर दी जाए, असल तरीका कार अगर नाफिज कर दिया जाए तो फिर गुर्बत बचती नहीं है। असल गुर्बत, असल प्रॉब्लम्स, असल मामला जो है वो दीन से दूरी ही की बिना पर है। इमाम मेहदी रदियल्लाहु तआला अन्हु गोया इस दुनिया में आकर ये साबित करेंगे कि अगर प्रॉपर इस्लाम नाफिज कर दिया जाए तो सब चीजें ठीक हो सकती। बहरहाल
وہ خوش नसीब लोग जो इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला का साथ देंगे, उनकी भी एक अलग शान और फजीलत होगी। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से इमाम मेहदी के बारे में क्वेश्चन किया गया तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि मेहदी का ज़ुहूर आखिर जमाने में होगा। अल्लाह ताला एक जमात को उनके पास इकट्ठा कर देगा जिस तरह बादल के अलग अलग टुकड़ों को जमा कर देता है और उनमें मोहब्बत पैदा कर देगा। ये ना तो किसी से खौफजदा होंगे और ना किसी के इनाम को देखकर खुश होंगे। खलीफा मेहदी के पास इकट्ठा होने वालों की तादाद असहाबे बदर यानी गज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा किराम की तादाद के मुताबिक 313 होगी। सुभान अल्लाह, यानी जब इस जमात को एक खास फजीलत हासिल होगी जो इनसे पहले वालों को हासिल हुई ना बाद वालों को हासिल होगी। नीज इस जमात की तादाद असहाबे तालूत की तादाद के बराबर होगी जिन्होंने तालूत के हमरा नहरे उर्दन को अबूर किया था। यहां एक अहम मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के हवाले से मुख्तलिफ प्रेडिक्शन की जाती है कि इमाम मेहदी आ चुके हैं या बस बिल्कुल आने ही वाले हैं। और ये वैसे है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन कि कब आएंगे इमाम मेहदी का एग्जैक्टली ज़हूर कब होगा। इस सवाल का 100% दुरुस्त जवाब देना तो मुश्किल है, मगर कुछ निशानियां ऐसी जो इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के आने से पहले जाहिर हो जाएंगी और कुछ बातें तो हम इब्तिदा में आपको बयान कर चुके हैं और मजीद जो वाज़ेह निशानियां हैं वो भी हम आपको शॉर्टली बता दें कि इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले जाहिर होने वाली जो निशानियां हैं उनमें सबसे पहले निशानी यह है कि दरिया फुरात पहाड़ की तरफ से फट पड़ेगा और उसमें से मौजूद सोना जाहिर होने लगे। उनके आने से पहले रमजान शरीफ की पहली तारीख को चांद गहन होगा और उसी दिन सेम डे दोपहर के वक्त सूरज गहन होगा और ऐसा गहन पहले कभी ना हुआ होगा। ये दूसरी बड़ी निशानी है। और 3 या 7 रातें मशरिक यानी ईस्ट की तरफ से एक बड़ी आग जाहिर होगी और बहुत बड़े बड़े जलजले अर्थ क्वेक भी आएंगे। और हां, इमाम मेहदी के आने से पहले एक निशानी जिसे उलमाए किराम सबसे बड़ी निशानी करार देते हैं वो ये कि कुस्तुनतुनिया शहर, जी हां, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, तुर्की का कैपिटल है, एक बार फिर गैर मुस्लिमों के हाथ में चला जाएगा। जी हां, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनके आने से पहले पूरी दुनिया में कुफ्र फैल चुका होगा और पूरी दुनिया गोया कुफ्रिस्तान बन चुकी होगी। तो जब मक्का पाक में तमाम लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बेअत कर लेंगे तो फिर वो वक्त आएगा कि एक बार फिर कुस्तुनतुनिया, एक बार फिर इस्तांबुल जो है मुसलमानों को मिल जाएगा। जी हां, इमाम मेहदी वहां से सब लोगों को अपने साथ लेकर कुस्तुनतुनिया आएंगे और कुस्तुनतुनिया को फतह फरमाएंगे। और अभी ये मामला चल ही रहा होगा कि इतने में शोर मच जाएगा, आवाज आएगी कि दज्जाल आ गया, दज्जाल। और फिर इमाम मेहदी ये सुनकर सब लोगों को लेकर मुल्क के शाम चले जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ये आवाज शैतान की थी और उसने झूठ बोला था। लेकिन इमाम मेहदी के शाम पहुंचने के बाद वाकई फिर दज्जाल निकल आएगा और फिर इमाम मेहदी अपने लश्कर को लेकर वहीं महसूर हो जाएंगे, यानी आप उन लोगों के साथ उस एरिया में ही रह जाएंगे और इतने में दज्जाल पूरी दुनिया घूम लेगा। फिर उसके बाद आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह जामा मस्जिद दमिश्क के मशरिकी मीनारे पर आएंगे। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको एक तफसीली एपिसोड में बताएंगे और इंशाअल्लाह मजीद उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। हमारी बात जारी है, लेकिन अगर अभी तक आपने दावत इस्लामी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। यकीनन ये नेकियों भरी बातें आगे पहुंचेंगी तो उसका सवाब जो है वो आपको भी मिलेगा। तो बहरहाल अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जामा मस्जिद दमिश्क की जो मशरिकी मीनारे में होगा तो सुबह का वक्त होगा। नमाज फजर के लिए इकामत भी हो चुकी होगी, अब जमात होने वाली है। जरा मंजर देखिएगा कैसा होगा। अल्लाह अकबर। एक तरफ अल्लाह के नबी हैं और एक तरफ नबियों के सरदार अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है। नाजरीन, अब क्वेश्चन ये है कि उस वक्त फजर की जमात कौन करवाए। इमाम मेहदी भी मस्जिद में है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़ुहूर हो गया। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस से सुनी, आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के कमजोर हो जाने की हालत में दज्जाल निकलेगा। और दज्जाल से मुतालिक तफसीलात बयान करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और सुबह सादिक से पहले ऐलान करेंगे कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें इस झूठे खबीस दज्जाल से मुकाबला करने में क्या चीज परेशान करती है। तो लोग कहेंगे कि ये कोई जिन्नाती मखलूक है। ये लोग आगे बढ़कर देखेंगे तो उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आएंगे। फिर नमाज फजर के लिए इकामत होगी और मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी कहेंगे कि ऐ रूहुल्लाह, इमामत के वास्ते आगे तशरीफ लाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम्हारा इमाम ही तुम्हें नमाज पढ़ाए। तो उस वक्त इमाम मेहदी, जी हां, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की इमामत फरमाएंगे। जब लोग नमाज से फारिग हो जाएंगे तो मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलेंगे। अब दज्जाल की हालत यह होगी कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे पानी में नमक घुलता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू इतनी दूर तक पहुंचेगी जहां तक नजर जाती होगी। वो भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा फरमाएंगे और बाबे लुद के पास उसकी पीठ में नेजा मारेंगे और इससे वो जहन्नम वासिल हो। तो ये मालूमात थी इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के हवाले से। और इमाम मेहदी के हवाले से जो बहुत सारी अफवाहें